معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کچھ اولیاء کرام کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بغور سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت صابر کلیری کا نام کس طرح کیسے پڑا۔ جب یہ اپنے ماں کے شکم مبارک میں تھے، اس وقت ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی شکم مبارک میں جو لڑکا ہے وہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد رکھیے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے شکم مبارک میں جو لڑکا جو فرزند ہے اس کا پیدا ہونے کے بعد علی نام رکھیے گا۔ اس زمانے میں رہنے والے ایک معزز بزرگ تشریف فرمائے، اور انہوں نے چونکہ خاصی بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا نام علاء الدین رکھی جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نام 3 ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ علاء الدین رکھیے کیونکہ یہ لڑکا پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرے گا اور قطب عالم بنے گا۔ تو اس وجہ سے ان کا نام سید احمد علی رکھا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعد میں ان کا نام حضرت مخدوم علاء الدین سید احمد علی کلیری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رکھا گیا۔ اب ذرا ہم لوگ والدین کی نسبت دیکھتے ہیں اور والدین کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، جو بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے ہی فیض والے تھے، فیض بزرگ تھے، جن کی نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتی ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ، جو حضرت مخدوم بابا فرید الدین شکر گنج کی سگی بہن تھی۔ ان کا تعلق سیدھے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتی ہے۔ نسب کا بیان تھوڑی سی میں تفصیل میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر بن عبداللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن سید احمد قدس سرا بن سید غیاث الدین قدس سرا بن سید بہاء الدین قدس سرا بن سید تاج الدین قدس سرا بن سید محمد اسماعیل قدس سرا بن سید امام ناطق موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بن امام محمد باقر، جن کی کنیت ابو محمد تقی تھا، بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جوزہ مبارک، ان کی جوزہ تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مخدوم علاء الدین سید احمد علی کلیری کا تعلق سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔
अब ज़रा गौर करेंगे इनकी विलादत के मतलब। आपकी पैदाइश बरोज़ जुमेरात तहज्जुद के वक्त 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी बमुताबिक 22 फरवरी 1196 को हरात जो अफ़गानिस्तान में है हुई। चंद मौरिख़ैन बड़ी अजीब तरीक़े से लिखे हैं। उनके मुताबिक जगह में मुतफ़रिक़ पाया जाता है, यानी कुछ मौरिख़ैन ने लिखा कि नानिहाल, मुल्तान के मकाम कोतवाल या कोठवाल, कस्बा यानी कि नाना जमालुद्दीन के यहाँ, जमालुद्दीन सुलेमान के यहाँ या उनके घर पैदा हुए, जबकि दौराने हमल हरात आने की सबूत नहीं मिलती। अपने वालिद मोहतरम जमालुद्दीन सुलेमान के यहाँ रहती थी, तो दौराने हमल हरात में आने की कोई सबूत नहीं मिलती, लेकिन बचपन के हालात हरात से ही वाबिस्ता है, चूँकि ये समझा जाता है कि हरात और वहाँ ननिहाल यानी कोठवाल की दूरी मुसफ़्फ़र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये भी समझा जाता है कि हो सकता है, मुमकिन है कि पैदाइश वहाँ हुई हो, उसके बाद चली आई हो। तो इसमें मुतफ़रिक़ है, अलग अलग मौरिख़ैन ने अलग अलग तरीक़े से लिखा है, लेकिन दोनों बातें रास्त होती हैं। कुछ इस तरह की लगती हैं कि लगता है कि दोनों बातें सही हैं, चूँकि हमल के दौरान वो अपने अब्बा वालिद के पास थी, ये मिलता है सबूत। उसके बाद पैदाइश का टोटल ज़िक्र हरात में मिलता है, तो पता चलता है कि हो सकता है कि विलादत के वक्त वो अपने घर हरात आ गई होंगी अफ़गानिस्तान। वक्त विलादत उनकी दाया जो थी, उनका नाम था मिस्मात बसरा बिन्त हाशिम। उन्होंने देखा कि जब ये पैदा हुए तो इनके सर मुबारक मगरिब की तरफ था और पैर मेरी तरफ था। मैंने कोशिश की कि इनको पकड़ूं, लेकिन मेरे हाथ इन तक पहुंच नहीं पा रही थी, या ये समझा जाए कि मेरे हाथ उनको छू नहीं पा रहा था। तो हज़रत अलाउद्दीन सैयद मोहम्मद अली साबिर कलियरी की वालिदा जब देखी कि पकड़ नहीं पा रही हैं, तब उन्होंने कहा कि ऐसा काम कीजिए कि आप वज़ू बना के आइए, वज़ू बना के ही हाथ लगाना है। उसके बाद वज़ू जब बना के आई और हाथ लगाई तो उठा ली। तो जब भी उस हज़रत को छूने की ख्वाहिश ज़ाहिर होती या ज़रूरत होती, तो वज़ू बना के ही वो छुआ करती थी, पकड़ा करती थी। ऐसे बग़ैर वज़ू उन्हें नहीं हाथ नहीं बढ़ पा रहा था, जहाँ है वहीं रह जा रहा था। वक्त विलादत आपके कान में उस ज़माने के बुज़ुर्ग शेख अबुल क़ासिम गरगानी या गरनामी, जो भी नाम हो, रहमतुल्लाह अलैह, ने कान में अज़ान दी और यही बोले थे कि ये लड़का जो है कुतुब आलम होगा। अब ज़रा हम लोग गौर करेंगे कि तालीम व तरबियत का सिलसिला किस तरह हुआ। इब्तदाई तालीम अपनी वालदा बीबी हाजरा के से हरात यानी अफ़गानिस्तान में ही पाई। हासिल करने के बाद उसके बाद तकरीबन 596 हिजरी या 4 साल की उम्र में पहली बार एक जुमला उन्होंने निकाला, वो जुमला था ला इलाहा इल्लल्लाह। आपकी वालदा करीब में ही थी, तो सुनी इनकी आवाज़ को, उन्होंने साफ सुना। 6 साल की उम्र में कम खाना शुरू कर दिए, चूँकि जब पैदा हुए उस वक्त भी इनकी सिस्टम थी। 6 साल की उम्र में कम खाना शुरू कर दिए। 8 साल की उम्र में वालदा ने उनको अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज के यहाँ
ले गईं। और चूँकि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहते थे पाक पतन या पाक पटन अजोधन के पास है, वहाँ रहते थे। वहाँ ले गई और उनको बोली कि इनको तालीम व तरबियत की दरख्वास्त है हमारी, इनको तालीम तरबियत दीजिए। साबिर कलियरी 603 हिजरी में अपने मामू बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज से बैत हुए और उनकी निगरानी में उलूम हासिल किए। 3 साल में ज़ाहिरी तमाम उलूम हासिल कर लिए। उसके बाद वालदा ने अपने भाई से गुजारिश की कि इनको ज़ाहिरी इल्म तो हो गई, बातनी इल्म दर्स दीजिए। और ये कह के वो हरात वापस चली गई। जब हरात वापस चली गई तो उसको ये बता के चली गई कि इनको बातनी इल्म से वाबस्ता कराइए। 5 साल की उम्र में वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, इसलिए मुसलसल अजोधन पाकपतन या पाकपटन में रहने लगे। अपनी मामू के साथ ही रहने लगे, उन्हीं की ज़ेर निगरानी रहने लगे। अब थोड़ी सी हम लोग करामात की तरफ चलते हैं। पैदा होने के कई दिन बाद दूध नहीं पीते थे, तो इसके लिए बड़ी दुआएं की उनकी वालिदा मोहतरमा। दुआओं का सिला हुआ कि वो दूध पीना शुरू किए। तो दूध पीने का इनका सिस्टम था, इनका ज़ाब्ता था कि एक दिन दूध पीते थे तो 2 दिन दूध, एक दिन नहीं पीते थे। एक दिन दूध पीते तो एक दिन नहीं पीते। 1 महीना इसी तरह हुआ। दूसरे महीना में 1 दिन पीते थे, 2 दिन नहीं पीते थे। यानी कि बचपन से ही, तिफलाना से ही रोज़ा रखना, सब्र करना इनकी खसलत में हो गई। और लगभग 6 साल की उम्र में इन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया, चूँकि 2 साल के बाद ये दूध पीना भी छोड़ दिए थे। सब्र का पैकर हो गए थे। दूसरी करामात 27 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को वालिदा मोहतरमा मुराक़बे में थी। और मुराक़बे के बाद जब आँख खोली तो उन्होंने देखा कि उनके अगल बगल बिस्तरे पर एक काला सांप के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। देखी कि 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, एक इनके पास, एक दूसरी तरफ है। तो वो घबरा के अपने शोहर को जगाई। वो जगे, वो भी तअज्जुब में हुए कि ये तो ख़तरनाक सांप है, लेकिन इसको 2 टुकड़े में कौन कर दिया। तो अल्लाह ने हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को क़ुव्वत गवाही दी और उन्होंने कहा कि इस सांप को मैंने मारा है और ये सांप अपने कौम या सांपों का सरदार है, इसलिए मैंने इसे मार दिया है। और दीगर सांप को भी मैंने बुलाया और सबसे ये वादा लिया कि आज के बाद कोई भी सांप मेरे ख़ानदान वालों को तकलीफ़ नहीं देगा या कोई भी सांप मेरे ख़ानदान वालों को नहीं काटेगा। ये उनके करामात में से है। अगला करामात देखते हैं कि एक दिन सुबह में माँ से खाने को मांगे कि भूख लगी है, खाना दीजिए, जबकि घर में कुछ नहीं था। वालिद मोहतरम का विसाल हो गया था, गुर्बत थी, तंगी थी, कुछ भी नहीं था। तो दिलासा दिलाने के लिए उन्होंने डेगची को आग पर, डेगची में पानी रख के आग को बिठा दी। जब आग को बिठा दी उस तरफ फिर ज़ोहर का वक्त हुआ, तैयार ही नहीं हुआ। बोले कि अम्मी खाना दीजिए, नहीं दे पाई। बोली कि ठीक है, पक जाएगा तो देंगे। सब्र का जो है जामा थे, सब्र का पैकर थे, सब्र करते रहे। ज़ोहर के बाद असर का वक्त हुआ, असर के बाद मगरिब का वक्त हुआ, फिर उसके बाद वही जवाब मिला। तो ये खुद उठ के गए और डेगची को खोला। हज़रत साबिर कलियरी उठ के गए और डेगची को खोले। तो जब खोले तो उन्होंने देखा कि इसमें चावल भरा हुआ है,
वो निकाल के खुद खाए और अम्मी को भी दिए। ये खबर जब उस ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग जिन्होंने इनके कान में अज़ान दी, शेख अबुल कासिम गरगानी को खबर हुई तो तअज्जुब हुए। और ये खबर हुई कि इसमें पानी रखा गया था और कुछ रखा नहीं गया था, लेकिन इनके हाथ से या इन्होंने जब उस डेगची को खोला तो उसमें चावल पाया गया, भात पाया गया। तो मोहतरम शेख अबुल कासिम गरगानी जो है तबरुकन उस चावल को खाया कि ये बहुत तबरुक चीज़ है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये इनके लिए आई है। एक दिन मामू बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने के कहा कि दिल्ली जाओ और जमालुद्दीन हासवी से सनद पर एक दरख्वास्त लिखवा लो या उस पर दस्तखत करा लो कि वहीं आपको रहना है। जब ये सनद लेके वहाँ पहुँचे जमालुद्दीन हासवी के पास और बोले कि इस पे दस्तखत कर दीजिए, मैं यहाँ का कुतुब आलम रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ खिदमत खल्क करूँ। तो मगरिब के बाद का वक्त था और अंधेरा छाया हुआ था, तो उसके बाद वो मोमबत्ती जलाए, चिराग जलाए कि साइन कर दें, दस्तखत कर दें, लेकिन अचानक बुझ गई। फिर उसके बाद दूसरे चिराग को जलाए, वो चिराग भी बुझ गई। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसी बात है कि ज़िद न करें। जमालुद्दीन हाशमी ने कहा कि ज़िद न करें, कल हम दस्तखत कर देंगे, लेकिन ये मज़ीद रहे और बोले कि नहीं, दस्तखत तो अभी ही करनी है। उन्होंने अपनी एक उंगली पे दुआ करके, दम करके और अल्लाह से दुआ की। उसके बाद उंगली जो है ट्यूबलाइट की तरह जलने लगी। जब उंगली ट्यूबलाइट की तरह जलने लगी और रोशनी हो गई तो हज़रत जमालुद्दीन हाशमी जो है गुस्से में आ गए और बोले कि जब आप इतनी ज़िद्दी किस्म के हैं और इस तरह से उंगली जला दिए, उंगली जला के रोशनी कर दिए, तो अब तो दिल्ली को जला देंगे, इसलिए मैं इस पे दस्तखत नहीं करूँगा। तो हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को भी जलाल आया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नसब मैं कट करता हूँ, आपका नसब कट करता हूँ। और इसके बाद ये कह के चले गए। मामू बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज से ये सारा वाक़या सुनाया। तो चूँकि जमालुद्दीन हाशमी का नसब वहीं से कट गया, उनसे अलग हो गए, तो मामू हज़रत मखदूम बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज ने कहा कि ठीक है, यहाँ तो नहीं हुए, अब ऐसा कीजिए कि आप कलियर जाइए और वहाँ जो है दीन की खिदमत कीजिए। तो जब वहाँ से कलियर पहुँचे तो कलियर पहुँचने के बाद बहुत सारे मुरीद आए, शागिर्द हुए। उनमें से शमशुद्दीन तुर्क पानीपत्ती एक ऐसे शागिर्द और मुरीदों में से हुए जो काफ़ी सवालात करते थे, जानने की कोशिश करते थे, जिनको इन्होंने काफ़ी पसंद भी की। तो इनको अपना ख़ास मुरीद मान के अपने साथ ही रखा करते थे। एक बार की बात है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के एक मुरीद कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा कि मेरे उस्ताद, मेरे पीर के बहुत सारे शागिर्दान, बहुत सारे मुरीदान हैं, लेकिन आपके पीर के सिर्फ आप अकेले हैं।
तो ये ख़बर जब हज़रत मखदूम अलाउद्दीन सैयद अहमद अली को मिली, साबिर कलियरी को मिली, तो वो बोले कि आपके या आपके जितने भी मुरीदान हैं उन मुरीदान के बराबर एक अकेला मेरा मुरीद है। ये ख़बर जाके वो मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दी दिल्ली जाके। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि उन्होंने सही कहा है, आपको इस तरह के सवालात नहीं करने चाहिए। एक बार सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तो जब बैठे हुए थे तो अचानक इन्होंने कहा कि नाना सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब 3 साल बाद इंतकाल कर जाएंगे। कुछ मौरिखीन ने दादा लिखा है, कुछ मौरिखीन ने नाना लिखा है, जबकि ये बगदाद में थे, लेकिन ये कलियर में बैठे बैठे इन्होंने एक पेशन गोई की कि वो 3 साल के बाद इंतकाल कर जाएंगे, और 3 साल के बाद यही वाक़या वारिद हुआ। एक बार मामो ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने लंगर का मोहतमीम इनको बना दिया और बोले कि ऐसी बात है कि लंगर आप चलाते रहिएगा। लेकिन गौर करने की बात है, ये कह के वो चले गए लंबे सफ़र के लिए ताकि हज करके आएँ, उसके बाद मखलूक की खिदमत करें, उसके बाद मुलाकात होगी। तकरीबन 12 साल हो गए। मौरिखीन अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा मौरिखीन की कलमकारी में ये बात पता चलती है कि 12 साल हो गए और 12 साल तक लंगर चलाते रहे। लेकिन इस बात पे अड़े रहे कि हमारे पीर मामू बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज ने ये नहीं कहा कि हमको भी खाते रहना है, इसलिए वो खाना नहीं खाते थे, सब्र से काम लेते थे। और उसी असरे में, उसी अरसे में, उसी टाइम में इन्होंने कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। जब लौट के आए और उनको खबर लिए कि आखिर साबिर अलाउद्दीन किधर है, अलाउद्दीन सैयद मोहम्मद अली किधर है, जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि बिल्कुल हड्डी हड्डी थे, क्योंकि खाना नहीं खाते थे तो होंगे ही। उन्होंने पूछा कि ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है, तो बोले मुअद्दिबाना अदब से बोले कि आपने हमको खाने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैं आपकी बातों पर अमल पैरा था। तब उस वक्त उन्होंने कहा कि सैयद मोहम्मद अली, तुम बहुत बड़े साबिर हो। उसके बाद इनको लक़ब साबिर का मिल गया और नाम हो गया मखदूम हज़रत अलाउद्दीन सैयद मोहम्मद अली साबिर कलियरी। एक बार की बात है कि कलियर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए। जब कलियर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो अगले सफ़ में, चूँकि पहले गए थे इसलिए अगले सफ़ में बैठ गए। तो वहाँ के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए और उन्होंने कहा कि पीछे जाइए, पीछे भेज दिए। फिर दूसरे लोग आए, वो लोग भी पीछे कर दिए। इस तरह सफ़ में पीछे आते 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 एकदम मस्जिद से बाहर आ गए। बड़े चक्कर में पड़ गए कि क्या यहाँ का सिस्टम है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठ जाएगा, शरीयत है। लेकिन यहाँ के लोग तो बड़ी अजीब हैं। बाहर खड़े रहे, नमाज शुरू हो गई। जब लोग रुकू और सजदे में जाने लगे तो हज़रत ने कहा कि ऐ मस्जिद, ये लोग तो रुकू और सजदे में जा रहे हैं, तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी सजदे में जाओ। इनका कहना था कि मस्जिद की मीनारें, दीवारें सब सजदे में चली गई, जिसके
जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात हो गई। 21 शव्वाल 613 हिजरी बरोज़ बुध को वालदा की गुजारिश की बुनियाद पर बाबा फरीद शकरगंज की दुख्तर नेक अख्तर हज़रत खदीजा का निकाह हज़रत अलाउद्दीन सैयद मोहम्मद अली साबिर कलियरी से हो गई, क्योंकि इनकी माँ हाजरा, बीबी हाजरा काफ़ी गुजारिश की अपने भाई से कि निकाह कर दीजिए, तो खदीजा से उन्होंने निकाह कर दी। निकाह के बाद उनसे मिलने के लिए गई कि खबर उनसे मिले, बात करें। जब मिलने के लिए गई तो वो बिल्कुल मुराकबे में थे, तो इशारा की चूड़ियों की खनक से, तो बोले कि कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो बोले कि अल्लाह का कोई नहीं है, न बीवी है, न बाल है, न बच्चे हैं, न वो खुद किसी के बाल बच्चे हैं। अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन वो काफ़ी बज़िद थी। उनको ये एहसास हो रहा था कि शायद अगर वो हमारी तरफ रुजू हों, देखें तो मिजाज बदल सके। लेकिन वो तो तौहीद में मुग़र्रिक हो गए थे। जब तौहीद में मुग़र्रिक हो गए थे तो उनके पास किसी तरह की बातें नहीं थी, वो सब्र का पैकर बन के रह गए थे। उन्होंने नज़र उठाई, बज़िद होने के बाद काफ़ी ज़िद की तो नज़र उठाई, लेकिन नज़र जब हज़रत खदीजा पर पड़ी वो उसी वक्त जल के राख हो गई। ये ख़बर जब उनकी वालिदा को मिली वो काफ़ी गमगीन हो गई, और उसी गम के आलम में कुछ दिनों के बाद इनका भी विसाल हो गया। एक बार, हालांकि उनके विसाल के बाद, उनके जल जाने के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज समझ गए कि साबिर कलियरी काफ़ी साबिर कलियरी हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जलाल है। एक बार शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने सवाल किया कि हज़रत, फ़ना और बका क्या है? फ़ना क्या है, बका क्या है? उन्होंने कहा कि ठीक है, वक्त आएगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा, लेकिन एक बात ताकीद मैं कर देता हूँ कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज कोई न पढ़े, कोई भी मेरे जनाजे की नमाज न पढ़े, बस मदफन वगैरह करके कफन पोष करके रख दीजिएगा। इत्तफाकन उनका विसाल हो गया। विसाल होने के बाद जो बातें कही गई थी उस हिसाब से, हालांकि उनका विसाल 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी बमुताबिक 1251 को हुई, तो इनको कफन पोष करके रख दिया गया। बकिया लोग जितने थे सब सफ में आरास्ता हो गए। कुछ देर के बाद देखते हैं कि घोड़े से एक सवार तशरीफ़ लाए जो नकाब पोश थे, वो इमाम की जगह खड़े हुए और नमाज के लिए ऐलान किए कि अब नमाज शुरू की जाए। उसके बाद इन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद वहाँ से चल पड़े। ज्यों ही घोड़े पर सवार हुए तो उनके शागिर्द हज़रत शमशुद्दीन तुर्क के पानीपती उनके सेन को पकड़ लिए और बोले कि हज़रत,
कल ज़माना पूछेगा कि आपके उस्ताद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए आप अपना शिनाख्त कराएं, आप अपने बारे में बताएं। तो उन्होंने अपने नकाब को उठाया तो देखे कि ये उन्हीं के पीर हज़रत मखदूम अलाउद्दीन सैयद मोहम्मद अली साबिर कलियरी। उन्होंने कहा, शमसुद्दीन, वो फ़ना है ये बका है, वो फ़ना है ये बका है। ये आपका सवाल था, तो आज मैं उस सवाल का जवाब, आखिरी सबक आपको समझा दे रहा हूँ, बता दिया। चूँकि हज़रत साबिर कलियरी के अंदर इतनी जलाल थी, जलाल की वजह से इनके मज़ार, इनकी कब्र के अगल बगल कोई भी ज़ीरूह नहीं जा पाता था, जाने के बाद जल जाता था। बहुत अरसा गुजर गया। चूँकि इनका मज़ार उत्तराखंड के ज़िला सहारनपुर हरिद्वार के करीब कलियर शरीफ में नहर गंग के किनारे है। अपनी जलालत की वजह से बहुत दिनों तक उनके मज़ार पर कोई पहुंच नहीं पाता था, जो भी जाता तो सभी जल जाते थे। बहुत अरसे के बाद उन्होंने हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को ख्वाब में दिखाया कि आप आइए और मेरे मज़ार की सफाई करके उसमें अहाता वगैरह दे दीजिए। वो हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अपने चंद शागिर्दान मुरीदान को लिए और उसके बाद कलियर पहुँचे। कलियर पहुँचने के बाद उनके मज़ार के अगल बगल सफाई की और सफाई करने के बाद कुरान खानी वगैरह कराए। फिर उसके बाद हाथा देना शुरू किए और धीरे धीरे जो है एक मज़ार की शक्ल में बन गई। उसके बाद उर्स वहाँ लगने लगा और हर साल रबीउल अव्वल में ही साबिर कलियरी की उर्स लगाई जाती है। तो ये रही करामात और उनके सवाने उम्री। साबिर कलियरी भी एक जलालत वाले वलियों में से गुज़रे हैं, जिनकी कहानियाँ दरपेश हैं, जिनकी कहानी, जिनकी करामात दरपेश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके बाद इनकी नस्ब रुक गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जवज़ा को खुद अपनी निगाहों से जला के राख कर दिया। चूँकि इससे पता चलता है कि उस्ताद की फर्माबरदारी, अल्लाह की वहदानियत अपने अंदर लाने वाला ही वली होता है। कुरान और हदीस पे अमल करने वाला ही वली होता है। वली से मुराद दोस्त, और अल्लाह के दोस्त वही हो सकता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने, उनके ऊपर चले, उनके रास्ते पर चले, वही वली होता है। बकिया वली नहीं होते। वली, कुछ वली पैदा हुए, वह विलायत लेकर पैदा हुए, कुछ वली बाद में हुए। तो कुछ वलियों को जिन वलियों ने पैदाइशी विलायत पाई है, उन लोगों के बारे में मैं हत्तल इम्कान आप लोगों तक कोशिश करूँगा कि उनकी जानकारी, उनकी सवानी उम्री, उनके हयात के बारे में, उनके बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो और दीगर औलिया इकराम के बारे में मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। अब तक जितने भी औलिया इकराम के वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाया हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप उसको सुने और उनसे सबक हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।